Hello student, in last video we have discussed the surface area of the combination of solids. Now today we discuss the volumes of the solid or the combination of solids. Here are some interesting questions in your exercise. Now we come to the questions of this exercise 13.2. The question number 3 is a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि गुलाब जामुन है जो सेंटर में मिडिल पार्ट उसका सिलेंड्रिकल है और एंड्स जो है वो हेमिस्फेरिकल है. इसमें उसका जो वॉल्यूम है उसका 30% शुगर सिरप उसमें कंटेन करता है. वो आपने खाया भी होगा तो उसमें के अंदर शुगर का सिरप आपको मिलता है. तो यहाँ पर ये 30% है और ऐसे 45 गुलाब जामुन्स में कितना शुगर सिरप होगा ये हमें फाइंड करना है. तो फर्स्ट लगभग हम इसका एक गुलाब जामुन का शेप देखते हैं. वो लगभग कुछ इस तरीके का है. ये गुलाब जामुन का शेप है. इसके जो एंड्स हैं, द एंड्स आर हेमिस्फेरिकल. ये जो एंड्स हैं ये हेमिस्फीयर है और ये मिडिल पार्ट है जो सिलेंड्रिकल है. ओके, तो यहां पर गिवन क्या है, द डायमेंशन ऑफ गुलाब जामुन क्या है, द लेंथ ऑफ गुलाब जामुन, लेंथ ऑफ अ gulab jamun is 5 centimeter. Now look at the total length. यहाँ से यहाँ तक ये 5 centimeter है. ओके, बट इसके जो एंड्स है वो कैसे हैं, हेमिस्फेरिकल है. और ये जो डायमीटर है इसका सिलेंड्रिकल पार्ट का या गुलाब जामुन का, ये कितना है यहाँ से यहाँ तक 2.8 सेंटीमीटर. तो इसका रेडियस कितना होगा 1.4 सेंटीमीटर. तो ये रेडियस जो है इसका हाइट भी होगा. हेमिस्फेरिकल का जो रेडियस है दैट इज द हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर. तो 1.4 इस तरफ भी आपका 1.4 होगा. तो ये टोटल हो गया कितना 2.8. ये कितना हो गया 2.8. तो लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, या हम यहां पर लिखें डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट is 2.8 centimeter. So its radius r will be 1.4 centimeter, half of the diameter. और इसको यदि हम चाहें तो फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लें 14/10, that is 7/5 centimeter. Okay, now so height or the length of cylindrical part, length of cylindrical part equals to 5 minus 5 total minus 1.4 means 2.8. so which is equals to कितना होगा ये 2.2. 5 minus 2.8 is 2.2. और इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो 22/10 that is 11/5 centimeter. Okay, now we have the dimension of cylindrical part as well as the hemispherical. हेमिस्फीयर में रेडियस है वो हमको मालूम है. अब यहां पर हम वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ एंड्स. So two hemispherical shape makes a spherical shape. So volume of gulab jamun is volume of cylindrical part plus volume of ends. Volume of ends. Now we write the formula. Volume of cylindrical part means volume of cylinder pi r square h.
तो ये जो h है इसका लेंथ होगा, है ना, प्लस वॉल्यूम ऑफ एंड्स, टू हेमिस्फीयर मेक्स अ स्फीयर, सो 4/3 pi r cube. Radius are same, radii are same, cylindrical part as well as the hemispherical part. Now to simplify this, pi r square is common, so we have h plus 4/3 into r. Now we put the value 22/7 into r, r square, r is how much, 7/5, so it is 7/5 into 7/5 within bracket h. H is length of cylindrical part, that is 11/5 plus 4/3 into r, r is 7/5. और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये 7 कैंसिल होगा, 22 इंटू 7 इंटू 25 अपॉन 25 विद इन ब्रैकेट 11/5 प्लस 28, 7 4s are 28 upon 5 3s are 15. That is the volume of a gulab jamun. But question ये है कि it contains 30% about its volume. Now we can calculate the volume of a syrup which contains by a gulab jamun. Single gulab jamun में कितना सिरप होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे now syrup contains in a gulab jamun equals to 30% of its volume. Now it is equals to 30% means 30 upon 100 into volume of a gulab jamun, that is 22 into 7 अपॉन 25 और यहाँ पर ये 11/5 प्लस 28 अपॉन 15. इसको सॉल्व करें, ये देखिए ये कैंसिल हो गया और इंटू कर ले तो ये हो जाएगा 3 इंटू 22 इंटू 7 154 अपॉन 10 इंटू 25 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा डिनोमिनेटर इसका होगा 15, 11 3s are 33 प्लस 28 और देखिए 3 से ये कैंसिल होगा, 3 5s are 15, तो ये हो गया 154 अपॉन 10 इंटू 25 इंटू 33 प्लस 28, दिस बिकम्स 1, then 61 upon 5. This is the volume of a syrup in one gulab jamun. Now how many gulab jamuns be there? We have to calculate for 45. So syrup contains in 45 gulab jamuns will be 45 into the syrup contains by single gulab jamun, that is 154 into 61 upon 10 into 25 into 5. अब देखिए यहाँ हमने इसको कैलकुलेट क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको फिर कैंसिल करना है, तो ये इसमें मेंसुरेशन में हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट में ही करेंगे, है ना, फाइनल कैलकुलेशन लास्ट में होगा. अब देखिए 5 9s are 45, अब ये कितना हो गया, एंड देन 2 5s are 10, 2 7s are and then 2 7s are, so 9 into 77 into 61 upon 25 into 5, that is 125. और इसको आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये नियरली 338.16 क्यूबिक सेंटीमीटर, या इसको अप्रोक्स आपको निकालना है तो ये 0.16, क्योंकि यहाँ पर आपको फाइंड करना है अप्रोक्सीमेट हाउ मच सिरप, सो राउंड अप करने पर ये होगा 338 cubic centimeter. So this is the volume of syrup contains by 45 गुलाब जामुन. ओके, तो ये अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो कुछ मीठा मीठा भी लग रहा होगा.
है ना. Now we come to the next question of this exercise. Question number 5. A vessel is in the form of inverted cone. If its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. माने height 8 centimeter है और उसका radius है 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. माने पूरा भरा हुआ है. When lead sorts, each of which is a spherical of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead sorts dropped in the vessel. माने एक कोनिकल जार है, वो पानी से भरा हुआ है, उसमें हम लेड सॉर्ट्स जो है, गोलियां जो है उसमें डाल रहे हैं, जिसका शेप कैसा है, स्फेरिकल शेप है, स्फीयर के फॉर्म में है. तो 1/4 वाटर उसका बाहर निकल रहा है, उस कंटेनर से बाहर जा रहा है. तो आपको ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ शॉट्स कितने हम उसमें ड्रॉप करेंगे, कितनी गोलियां हम उसके अंदर ड्रॉप करेंगे. ओके, तो यहाँ पर हम एक डायग्राम से इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें. ये हमारा कोनिकल जार है, which is filled with water up to the top. Now the radius is 5 centimeter and height is 8 centimeter. Now lead sorts, जो गोलियां हैं, इसका जो रेडियस है वो कितना है, 0.5 सेंटीमीटर. ओके, ये गोलियां इसके अंदर हम ड्रॉप कर रहे हैं. तो पानी कैसा होगा, बाहर होगा, क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर है. तो यहाँ पर हम डायमेंशंस लिख लें, फिर इसका वॉल्यूम निकालेंगे और फिर उसका 1/4 निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर मिलेगा, और इसके वॉल्यूम से हम उसको कंपेयर करेंगे तो आपको नंबर ऑफ शॉट्स मिल जाएंगे कि कितने हमने उसमें ड्रॉप किए हैं. सो हियर द डायमेंशंस ऑफ कोन आर height of the cone, that is h, is 8 centimeter, and the radius of cone r is 5 centimeter. Okay, now what is the dimension of the shot, गोली जो है spherical shape में है. So radius of lead shot is r1, because its dimension is different from this one. So r1 is 0.5 centimeter, which can be written as 1/2 centimeter. 5/10 इसको fractional form में convert कर लिया. Now the volume of cone is how much? 1/3 pi r square h. कितना पानी है इसके अंदर? 1/3 pi r square h. And the volume of a lead shot, which is in the form of sphere, so 4/3 pi r1 cube. Okay, now let the number of lead shots, dropped be n. अब यहाँ रिलेशन क्या होगा, द वॉल्यूम ऑफ n शॉट्स इज 1/4 द वॉल्यूम ऑफ कोन. क्यों? क्योंकि 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट. कितना पानी बाहर आ रहा है? 1/4 आ रहा है. किसका? इस टोटल वॉल्यूम का. तो टोटल वॉल्यूम का 1/4 इज सेम एज द वॉल्यूम ऑफ n शॉट्स, क्योंकि n शॉट्स हम उसमें ड्रॉप कर रहे हैं. तो सिंस वॉल्यूम ऑफ n shots equals to 1/4 the volume of cone. Okay, now we put the value. So volume of n shots क्या होगा? n into volume of one shot 4/3 pi r1 cube equals to 1/4 into 1/3 pi r square h. ये हमने फॉर्मूला लिख दिया क्योंकि ये रिक्वायर्ड होता है. ओके, अब यहाँ देखिए कुछ वैल्यूज जो है वो कैंसिल भी हो रहे हैं, है ना. तो पाई कैंसिल होगा फ्रॉम बोथ द साइड्स. डिनोमिनेटर में 3 है, ये भी कैंसिल होगा. अब हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज क्या है? n into 4 into r1 cube. r1 is
this is r1, 1 by 2 whole cube equals to 1 by 4 r square, r is 5, so 5 square into 8, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर ले तो ये हो जाएगा n इंटू 4 इंटू 1 by 8, 1 by 2 whole cube 1 by 8 equals to 1 by 4 into 25, 5 square 25 into 8, so 4 1s are 4 2s are 8 and 4 1s are 4 2s are 8, so here transposing this upon 2 to other side, it becomes 2 into 25 into 2, so n becomes 100. So number of shots or lead shots dropped is 100. So this is the answer. तो यहाँ भी हमने क्या किया, वॉल्यूम को कंपेयर किया है। थोड़ा सा क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस टर्म्स में हमको वैल्यूज गिवन है, उस टर्म में हम उनको कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेम एक्सरसाइज 13.2। A solid consisting a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter, which is standing on a hemisphere of radius 60 centimeter, is placed upright circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of cylinder is 60 centimeter and height is 180 centimeter. अब यहाँ एक चीज कॉमन आपको दिख रहा है कि जो भी शेप है, सिलिंड्रिकल शेप, कोनिकल शेप और स्फेरिकल शेप, इन सभी का रेडियस सेम है। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे डायग्राम में कि किस तरीके का सिचुएशन है। सिचुएशन ये है कि एक कोनिकल पार्ट है, सर्कुलर, राइट सर्कुलर कोन, माने टॉप से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बेस पर वो राइट एंगल होगा, हाइट जो है, इसलिए उसको हमने राइट सर्कुलर कोन का है। इट इज प्लेस्ड अपराइट ऑन अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर वो रखा हुआ है। व्हेन a right circular cylinder which is full of water such that it touches the bottom, माने इस तरीके का एक शेप जो है, ये कोनिकल शेप है, राइट सर्कुलर कोन है ये। इट इज upright placed on a hemisphere of the same radius, इसका जो रेडियस 60 सेंटीमीटर है वही रेडियस यहाँ पर इसका हेमिस्फीयर का भी होगा 16 सेंटीमीटर। द हाइट इज 120 सेंटीमीटर ऑफ द कोन। दिस शेप इज प्लेस्ड इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विच इज फुल ऑफ वाटर। अब यहाँ देखिए इसका जो सिलेंडर है उसका भी रेडियस कितना है, 60 सेंटीमीटर है, तो कुछ इस तरीके का एक शेप आपको देखेगा। और देखिए इसका हाइट 180 है, हाइट ऑफ कोन इज 120 and the radius of hemisphere is 60, so 120 plus 60 becomes 180, which is same as the height of the cylinder. तो यहाँ कुछ इस तरीके का एक शेप आपको मिलेगा। ये कुछ इस तरीके का शेप आपको मिल रहा है, ये सर्कुलर है। अब ये फुल ऑफ वाटर है, तो जब इसके अंदर ये प्लेस्ड होगा तो वाटर क्या होगा, फ्लोज आउट होगा, लेकिन कुछ वाटर जो है इसके अंदर रिमेन होगा। वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग वाटर इन द वेसल और सिलिंड्रिकल वेसल, माने इस सिलिंड्रिकल वेसल के अंदर कितना पानी बचा हुआ है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पहले हम डायमेंशन लिखें। द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज h is 180 centimeter and radius of right circular cylinder r is 60 centimeter.
अब यहाँ देखिए सभी का रेडियस सेम है, सिलेंडर का, हेमिस्फीयर का और कोन का। यहाँ पर रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर which is R also 60 centimeter, and height of cone that is H1 is 120 centimeter. Okay, now the volume of water left in the vessel is how much? Volume of cylindrical vessel minus volume of cone plus volume of hemisphere. So volume of cylindrical vessel minus of volume of cone minus volume of hemisphere. ये देखिए, ये कोन और हेमिस्फीयर इनका वॉल्यूम माइनस होगा। अब वैल्यू पुट कर दें, फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वन, 1/3 पाई आर वन स्क्वायर, आर यहाँ सेम है, एच डिफरेंट है, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये वॉल्यूम ऑफ वेसल से ये माइनस होगा। अब यहाँ देखिए कॉमन क्या है, पाई आर स्क्वायर इज कॉमन टू ऑल, सो पाई आर स्क्वायर इज कॉमन, सो वी हैव एच माइनस h1/3 माइनस 2/3 इंटू आर। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दें, तो पाई इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 60 स्क्वायर होगा, एच कितना है 180 माइनस h1 इज 120 अपॉन 3 माइनस 2/3 इंटू 60। ये हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, कितना होगा देखिए 22/7 इंटू 60 स्क्वायर इज 3600 विद इन ब्रैकेट 180 माइनस ये कैंसिल होगा 40 टाइम्स और 3 20 तो ये होगा देखिए -40 एंड -2 इंटू 20 अगेन 40, तो -40 minus 40 becomes -80. So we have 22/7 into 3600 into 100. Okay. Now we convert itna cubic centimeter. This one in cubic centimeter. Now we can convert it into cubic meter. So when we converted cubic meter, we have to divide it by, इसको cubic सेंटीमीटर को cubic मीटर में चेंज करेंगे तो 22/7 into 3600 into 100 divided by 100 into 100 into 100। जो सेंटीमीटर में है उसको मीटर में कन्वर्ट किया, so 1 सेंटीमीटर इज 1/100 मीटर। तो ये सेंटीमीटर को हमने वॉल्यूम है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों को हमने कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, 2 zeros ये कैंसिल हो गए, आपके पास कितना बचा 22 इंटू 36 अपॉन 7 इंटू 100। ओके, और इसको कैलकुलेट करने पर कितनी वैल्यू आएगी इसकी वो आप देखेंगे, 22 इंटू 0.36 अपॉन 7, और चाहे तो आप 22/7 कितना है 3.14 इंटू 0.36 इतना क्यूबिक मीटर। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे इंटू करके तो आपको आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ द प्रोडक्ट इज 1.131 cubic
मीटर। ये क्यूबिक मीटर में हमने इसलिए कन्वर्ट कर लिया क्योंकि जो हाइट है वो सेंटीमीटर में गिवन है, बट यदि हम क्यूबिक सेंटीमीटर में लिखेंगे तो बहुत बड़ा फिगर होगा, उसको क्यूबिक मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द वेसल इज 1.131 क्यूबिक मीटर। तो अभी हमने देखा कि ये जो रेगुलर सॉलिड्स हैं इनके कॉम्बिनेशन से जो वॉल्यूम्स हम कैलकुलेट करेंगे उनके कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस हमने करके देखे हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। एक जगह और ध्यान रखिएगा, कई बार हमें वॉल्यूम के टर्म्स में मास को कैलकुलेट करना होता है। वॉल्यूम के टर्म में क्या करना पड़ता है? मास। तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये डेंसिटी क्या है? वॉल्यूम तो आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए सिलेंड्रिकल वेसल है और उसका हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया। अब मान लीजिए वो जिस मेटल का है उसका हमें टोटल वेट निकालना है, मास निकालना है, तो हमें डेंसिटी गिवन होगा। डेंसिटी पर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर स्क्वायर पर क्यूबिक यूनिट, माने एक क्यूबिक यूनिट में उसका कितना मास है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मान लीजिए 24 है और उसकी डेंसिटी है 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस मच गिव्स द ग्राम्स। तो इस तरीके से हम मास भी निकाल सकते हैं किसी भी मेटल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का। पहले हमें उसका वॉल्यूम निकालना है, डेंसिटी गिवन होगा, तो वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, यू कैन गेट द मास। ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में है, उनको भी आप कर सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल हैं उनको भी आप करिए, रेफरेंस बुक का यूज कीजिए, जो भी डिफिकल्टीज हैं वो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।